our social science class. It is our chapter 5th, our beautiful country. In our previous part, we have learned about different type of landform. Now we will see the question answers on this chapter. Read and answer. Question A. Tick the correct answer. First one is, which is the highest peak in the world? Which is the highest peak in the world? The options are A. Lhotse, B. Nanda Devi, and C. Mount Everest. And the correct option is Mount Everest. Mount Everest is the highest peak in the world. Then second one is, where do the two coastal plains meet? Two coastal plains, eastern coastal plains and western coastal plains. Where do the two coastal plains meet? Options A. Kanyakumari, B. Kochi, and C. Tuticorin. And the correct answer is Kanyakumari. Then third one is, which plateau is also called the Deccan Plateau? Which plateau is also called the Deccan Plateau? Option A. Narmada, B. Southern, and C. Northern. And the correct answer is B. Southern. Southern plateau is also called the Deccan Plateau. Then fourth, in which part of India does the Thar Desert lie? In which part of India does the Thar Desert lie? कौन से इंडिया के कौन से हिस्से में थार डेजर्ट है? ऑप्शंस आर ए साउथर्न, बी सेंट्रल, एंड सी नॉर्थ वेस्टर्न. And the correct answer is C. Northwestern. Fifth one is, in which water body lie the Lakshadweep Island? In which water body lie in the Lakshadweep Island? Options: Bay of Bengal, B. Arabian Sea, and C. Indian Ocean. And the answer is B. Arabian Sea. Question B. Fill in the blank. First one is, a hill is a highland with a dash top. A hill is a highland with a round top. Hill जो है highland है जिसका top round होता है. Second, the Himalayas lie in dash India. And the Himalayas lie in North India. Third, the dash areas are neither very hot nor very cold. The coastal areas are neither very hot nor very cold. Fourth one is, parts of dash are covered by a desert. Parts of Rajasthan are covered by desert. Fifth, and dash is a piece of land surrounded by water on all sides. An island is a piece of land surrounded by water on all sides. Then question C. Answer these questions. First one is, what kind of climate will you find in the mountains and in the plains? What kind of climate will you find in the mountains and in the plains? माउंटेन में और प्लेन्स में किस तरह का क्लाइमेट दिखाई देता है? The mountains have a very cold climate. माउंटेन में very cold यानी ठंडा क्लाइमेट होता है. Most of the mountains remain covered with snow. In the plains, summers are hot and winters are cold. माउंटेन में किस तरह का क्लाइमेट होता है? very cold. और माउंटेन जो है हमेशा स्नो से कवर्ड रहते हैं, और प्लेन्स में जो है समर में ज़्यादा समर्स जो है हॉट होते हैं और विंटर्स कोल्ड होते हैं. देन सेकेंड वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेन एंड 3 प्लेट्यूज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड प्लेट्यूज? प्लेन इज अ फ्लैट एंड लेवल लैंड. प्लेन इज अ फ्लैट एंड लेवल लैंड, whereas a plateau is a high land with steep side and flat top. Plains have green and fertile land. Plains have flat and level land, and it has green and fertile land. Plains की जो land है green और fertile होती है और plain होती है.
whereas plateau is highland with steep sides and flat top, and plateau have hard and rocky land. plateau की जो लैंड होती है वो हार्ड और रॉकी होती है, जबकि प्लेन्स की ग्रीन और फर्टाइल होती है. थर्ड वन इज why is the southern part of India called a peninsula? Why is the southern part of India is called peninsula? The southern part of India is called a peninsula because it is surrounded by water bodies on three sides. It is surrounded by water bodies on three sides. तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है. Why are there very few trees in desert? डेजर्ट में बहुत कम ट्रीज क्यों दिखाई देते हैं? डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. That is why there are very few trees in the desert. Then question D, think and answer. In Goa, winters are pleasant and not cold. Why? गोवा में विंटर जो है प्लीजेंट और प्लीजेंट रहता है और ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है. ऐसे क्यों? गोवा लाइज इन द कोस्टल एरिया. गोवा कहाँ पर है? कोस्टल एरिया में है. कोस्टल एरिया यानी जहाँ पर समुद्र और लैंड जो है मिलती है, उस जगह को कोस्टल एरिया कहते हैं. तो गोवा लाइज इन द कोस्टल एरिया. Therefore, the climate of Goa is neither very hot nor very cold. Winters therefore are pleasant in Goa. यहाँ का जो कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा हॉट भी नहीं है और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है. इसकी वजह से गोवा जो है प्लीजेंट है और ज़्यादा कोल्ड नहीं है. देन डू एंड लर्न. क्वेश्चन ई, एक्टिविटी. राइट द लैंडफॉर्म फाउंड इन दिस डेजर्ट. Write the landform found in these states. Write the landforms found in these states. यहाँ पर जो states के नेम दिए हैं, ये जो states के नेम दिए हैं, उन states में किस तरह का लैंडफॉर्म दिखाई देता है वो आपको लिखना है. तो फर्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में किस तरह का लैंडफॉर्म है? माउंटेन्स. तो यहाँ पर हमने माउंटेन लिखा है. देन तेलंगाना, इस रीजन में किस तरह का लैंडफॉर्म है? प्लेटू. देन राजस्थान, राजस्थान में है डेजर्ट. देन उत्तर प्रदेश प्लेन्स, सिक्किम माउंटेन्स, एंड छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, रीजन है, किस तरह का है? वहाँ प्लेटूज है. देन एफ, हियर आर सम थिंग्स रिलेटेड टू माउंटेन्स एंड डेजर्ट. हियर आर सम थिंग्स रिलेटेड टू माउंटेन्स एंड डेजर्ट. राइट M फॉर माउंटेन और D फॉर डेजर्ट अगेंस्ट इच. यहाँ पर कुछ जो थिंग्स के नेम दिए हुए हैं वो कुछ डेजर्ट से रिलेटेड है और कुछ माउंटेन से रिलेटेड है. जो डेजर्ट से रिलेटेड है उसके आगे आपको D लिखना है, जो माउंटेन से रिलेटेड है उसके आगे आपको M लिखना है. तो फर्स्ट इज सैंड. सैंड माउंटेन से रिलेटेड है या डेजर्ट से? तो सैंड जो है डेजर्ट में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर हमने सैंड के आगे D लिखा है. देन कैक्टस. कैक्टस या जो थॉर्नी ट्रीज है ये भी डेजर्ट में मिलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर D लिखा है. देन थर्ड वन इज याक. याक ये जो एनिमल है ये माउंटेन पर दिखाई देता है, इसलिए हम यहाँ पर M लिखेंगे. देन फोर्थ वन इज कैमल. कैमल डेजर्ट का शिप है, यानी डेजर्ट में ज़्यादातर पाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कैमल के आगे D लिखा है, डेजर्ट. देन फिफ्थ वन इज स्नो. माउंटेन्स के जो हिल है वो स्नो से कवर्ड रहते हैं, तो स्नो जो है माउंटेन पर रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर M लिखा है. देन सिक्स वन इज पाइन ट्रीज. माउंटेन का जो फॉरेस्ट है वो पाइन ट्रीज वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है M. देन क्वेश्चन G, a camel is used a lot in deserts. Find out what make it so useful. कैमल जो है डेजर्ट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ऐसे क्यों होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ हिंट दिए हैं. स्टोर्स फूड एंड वाटर, पैडिंग ऑन द फिट. स्टोर्स फूड एंड वाटर, पैडिंग ऑन द फिट. कैमल जो है वो क्या करता है कि जब उसे खाने
खाने के लिए मिलता है, खाना मिलता है, उस समय वो क्या करता है, बहुत सारा खाना खाकर अपने हम्प में, उसके बॉडी पर, पीठ के ऊपर जो हम्प होता है वहाँ पर एज अ फैट वो जमा करके रखता है। और पानी भी, जब पानी मिल रहा है तो उसमें वो पानी पीकर अपनी बॉडी के अंदर ही बैग होती है पानी की, उसमें वो पानी भी इकट्ठा करके रखता है। और जिस दिनों में उसे खाना नहीं मिलता है उस दिनों में वो उस हम्प में से जो फैट्स है वो यूज़ करता है, और पानी भी अपनी बॉडी के अंदर जो पानी है वही पानी पीकर वो बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकता है बिना कुछ खाए पिए। और पैडिंग ऑन द फिट, यानी उसके पैर जो है इस तरह के पैड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं वो, जब वो रेगिस्तान में चलता है तो पैड जो है ऐसे स्प्रेड होते हैं और जिससे उसे डेजर्ट में यानी सैंड पर चलना इजी हो जाता है। तो इस तरह के आपको आंसर्स ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसकी हेल्प लेकर आपको इसका आंसर लिखना है। देन एच, मैप वर्क, मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन पेज 128। पेज नंबर 128 पर आपकी टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 128 है वहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, उसमें आपको नीचे दिए हुए चीज़ें जो है मेंशन करके उसे लेबल करना है और मार्क करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले ऑल द मेजर लैंडफॉर्म इन डिफरेंट कलर्स। जो इस चैप्टर में हमने डिफरेंट लैंडफॉर्म्स देखे हैं, जैसे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, देन प्लेट्यू है, आइलैंड है, वो जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं उनको अलग अलग कलर्स में लेबल करना है और मार्क करना है। देन रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये जो रिवर्स हैं उन्हें भी आपको लेबल करना है और मार्क करना है। देन आई, लाइफ स्किल, व्हाट विल यू पैक इफ यू आर गोइंग टू अ डेजर्ट, कलर द करेक्ट क्लाउड। अगर आप डेजर्ट में जा रहे हो तो डेजर्ट में घूमने के लिए जाते समय आप साथ में क्या क्या लेकर जाओगे। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें आपको उस क्लाउड को आपको कलर करना है। तो शूज़, डेजर्ट में चलने के लिए शूज़ आपको चाहिए, इसलिए यहाँ पर आप क्या करोगे, इसे कलर करोगे। देन वुलन्स, यानी कि गर्म कपड़ों की ज़रूरत है क्या, डेजर्ट एरिया, डेजर्ट रीजन जो है ऑलरेडी हॉट होता है, ड्राई होता है, तो वुलन क्लॉथ की ज़रूरत है क्या, नहीं है, तो इसे हम कलर नहीं करेंगे। देन हैट, हॉट रीजन है, सन रेजेस रहेंगे, इसलिए यहाँ पर हम हैट के साथ में लेकर जाएंगे। देन रेनकोट, वहाँ पर बहुत थोड़ी रेन होती है या फिर कभी कभार होती भी नहीं है, तो रेनकोट की ज़रूरत नहीं है। देन सन ग्लासेस, हॉट रीजन होने की वजह से यहाँ हमें सन ग्लासेस भी साथ लेकर जाने होंगे, तो हम यहाँ भी कलर करेंगे। Here we have completed our question answers on the chapter 5. Now you have to write it in your textbook and then in your notebook. You have to write question one time and answers 3 times.